A very good evening. I welcome you all on behalf of Research Culture Society and Scientific Research Association for this short-term training program on developing personal improvement through soft skills. Here is a hearty welcome to all of you for this alluring session. Here we have our organizing committee, Dr. C.M. Patel, as Director of Research Culture Society, Ms. Jaya Chetwani Ma'am, Counselor and Special Educator, Dr. Jessica, founders of Scientific Research Association. Short-term training program is all about personal attribute, personality traits, inherent social cues of communication, abilities needed for success. It includes adaptability, attitude, communication, creative thinking, and many more. It complies all the component and shapes skills into competencies. In this program, we learn about confidence and enthusiasm regarding self-motivation, raise aspiration and belief in one's own abilities. We learn to develop effective interpersonal communication, leadership, emotional and social skills. We learn to develop effective interpersonal communication, leadership, development of all-round personality with a mature outlook, and to function effectively in different circumstances. Sir, could we please have the video? To all. Research Culture Society is a government-registered scientific research organization. Society is working for the research community at national and international level to impart quality and non-profitable services. Our members are scholarly educationists from various universities and institutes of repute. Here the faculties, research scholars and students interested in the area of research are given guidance and support in how their work can contribute to the betterment of our present and future generations. Research Culture Society is conducting conferences, seminars, symposiums, workshops, training, and development programs on different themes. Society has organized 100+ educational programs successfully at national and international level in association with different educational institutions. Also published select annual special issues and book proceedings. Society is running international level referred, peer-reviewed journals with ISSN and books publication with ISBN. Educational institutions, colleges, universities are of understanding and collaboration to organize events. Society is promoting and sponsoring educational events as well as publishing research work in collaboration. The Society also offers membership. The journals associated with Research Culture Society are referred, indexed, and with high impact factor. Society journals are publishing research papers, articles in all major fields and subjects related to sciences, health sciences, engineering, agriculture, pharmacy, commerce, management, social sciences, arts, humanities, education, law and life skills. Journals provide publications and digital identification with a nominal processing charge. Research Culture Society also provides print and online book publications with ISBN. Society invites book publication in all study subjects and categories. Thesis converted into book and conference proceedings publication also available. Research Culture Society arranges special lectures on soft skills, communication skills, personality development, behavior improvement, human resource development, career development, general knowledge improvement, environmental issues, and improvement, etc. in different institutions, colleges, universities, and schools. The Society bestows excellence and achievement awards in different categories as US Awards, SRA Awards. Thank you. For further details, visit our website.
Thank you, sir. Here we have our resource person for the day, Dr. Meeta Shah. Dr. Meeta Shah ma'am is an accommodation trainer and founder of Mind Your Career, Jabalpur, India. Dr. Meeta Shah ma'am has a work experience of 14 years in the Department of Commerce and Management. Women issues have always been a field of her interest, and it got strengthened with her PhD in gender budgeting, a minor research project, and national seminar sponsored by UGC. She has also organized a national conference on financial inclusion in 2015 and has 8 published books, out of which 2 are of gender budgeting. She has also headed the Women Empowerment Cell and Entrepreneurship Development Cell and organized a workshop on entrepreneurship, short-term training program on communication skills, and workshop on gender sensitization, all 3 sponsored by RGPV Bhopal. She is also a certified career counselor and loves to connect with people and help them out. She has organized a lot of meaningful activities through the cells she headed out, which remarkable ones were awareness program of women's safety and cybercrime. Ma'am, we welcome you for this win. Thank you. Thank you so much for this introduction. Shall I begin with the presentation, ma'am? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. All are we all want to excel in our jobs. First of all, please let me know, would you all be comfortable in English, or can I just incorporate bit of Hindi also in between? मैं English और हिंदी दोनों का ही उपयोग कर सकती हूँ? Yes, ma'am. Okay, fine. Like हम जो भी अभी कर रहे हैं, like आप जो भी एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, और इन केस अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी है, so if we अगर हम कोई नया जॉब चाहते हैं, और if we want to excel in the job that we are already in, तो हमें कुछ स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है. मैं कहती हूँ these are the skills of the upcoming century. So अगर हम स्किल्स की बात करते हैं, तो हमें कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं? We all need to develop excellent communication skills. What are communication skills? You should know how to express yourself. You should know how to understand what the other person is expressing before you. Then comes organization skills. Organization skills, I personally say that organization skills is all about being organized, being systematic, having a very good systematic planned approach to whatever you are doing in life. Next skill is the skill of teamwork. We should know how to work with a team. That is, we should know how to work with a group of people. जितना ज्यादा हम ग्रुप में काम करना जानेंगे, लोगों के साथ एडजस्ट करना जानेंगे, उतना ही हम अपने जॉब्स में एक्सेल कर सकेंगे. Then comes punctuality. Punctuality is all about respecting time. आप जितना समय को रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही समय आपको रिस्पेक्ट करेगा. So try to be on time, try to show yourself up on time, and just respect the importance of time. Then comes emotional intelligence. I think emotional intelligence पे Research Culture Society एक पहले भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर चुकी है. So emotional intelligence in one line would be managing your emotions in the best possible way. See, we go through a lot of emotions. बहुत सारी चीजें हमारे अंदर चलती है, पर हमारे चेहरे पे कौन से इमोशंस हमें एक्सप्रेस करने हैं, हमें कितना सामने वाले को दिखाना है, कब दिखाना है, ये सारी चीजें जब हम अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, we can say that we are emotionally intelligent. Then comes critical thinking. The ability of critical thinking is extremely important. We should know what is right in a particular situation, what decisions are to be taken, how they should be taken. We should know how to analyze. Next comes creativity. Creativity is all about coming up with something new. आप जो भी कर रहे हो उसको नए तरीके से उसको करने का तरीका जानिए, आप उसको बेहतर तरीके से करने का तरीका जानिए. आप जितने ज्यादा क्रिएटिव होते जाओगे, जितना नया नया करते जाओगे, जितना अपने काम में नयापन लाओगे,
उतना ही आपका सर्वाइवल जो है वो बेहतर होगा. Next comes adaptability. Adaptability is the skill to adjust with whatever is going around you. और अभी तो मैं कहूंगी पोस्ट कोविड, और कोविड ने भी हमें बहुत कुछ नया सिखा दिया. इनफैक्ट अगर आज हम ये ऑनलाइन मोड से कनेक्ट हो पा रहे हैं, मैं कहा मध्य प्रदेश में, आप लोग अलग अलग जगह से है, बट वी ऑल आर कनेक्टिंग विद ईच अदर. So that's because we have adapted with the new technologies. So we need to develop the skill of adaptability. Then comes computer literacy. अगर आज के जमाने में कोई कहे कि मुझे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना नहीं आता, आई एम नॉट वेरी मच कंप्यूटर savvy, मुझे मेल करना नहीं आता या मुझे नेट एक्सेस करना नहीं आता, तो आई एम सॉरी टू से हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. किसी प्रोफेशन में ही नहीं, अपने घरों पे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. So we all need to be computer literate. Then comes inclusiveness. Inclusiveness is, when we should know a bit of everything, whatever is going around us. Definitely we have to be a master of one particular skill, but थोड़ा बहुत हमें काफी सारी चीजों के बारे में जानना होगा. जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मैं अगर डॉक्टर हूँ और मैं सिर्फ लोगों का इलाज कर सकती हूँ, तो सॉरी टू से आप एक स्किल के भरोसे सब कुछ नहीं कर सकते. अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, आपको डेफिनेटली आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस में भी अच्छा होना चाहिए. क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती तो आप एक ही स्किल को लेके बहुत लंबे समय तक कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते हो. सो इंक्लूसिवनेस इज ऑल्सो द स्किल ऑफ द न्यू एरा. तो यदि आप किसी जॉब में हो तो ये स्किल्स को इम्प्रोवाइज करो. यदि आप कोई नया जॉब चाहते हो तो ये स्किल्स आपको सबसे पहले डेवलप करते हैं. अगर मैं इतने सारे स्किल्स की बात करूं तो जो फर्स्ट पोजीशन है दैट हैज बीन गिवन टू कम्युनिकेशन स्किल्स. सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स, आई मीन डेवलपिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इज द नीड ऑफ द आवर. और इसको और थोड़ा सा अगर हम कंसाइज करें, दैट इज द 4 C's ऑफ द 21st century skills. तो वो है क्रिएटर, दैट इज प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क. Collaborator, the skill of working with people. Communicator, understanding and communicating ideas, whatever is going within you. And above all, critical thinker. A person has to be a problem shooter and not a problem creator to survive. तो ये 4 स्किल्स तो आपको डेवलप करने ही करने हैं, और जो बाकी के मैंने बताए यदि आप वो भी करते हैं तो आप अपने आप को और इम्प्रोवाइज करते हैं. नेक्स्ट कम्स, थोड़ा सा डेटा की तरफ जाए, क्योंकि अगर मैं जो भी कह रही हूँ उसे मुझे प्रूव करना है कि सच है ये सब कुछ. तो अगर हम बात करें जो भी, अब अगर कोई रिक्रूटर जो है, कोई HR किसी कंपनी का है, इफ दे आर लुकिंग फॉर स्किल्स इन द पर्सन टू अपॉइंट, सो द टॉप सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोफेशनल, अगर हम सारी बात करें, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, राइटिंग, ट्रबल शूटिंग, रिसर्च, तो इन सब में सबसे पहला जो पोजीशन है, जिसको सबसे ज्यादा, जिसका जरूरत भी है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड अगर और डेटा की तरफ जाए तो डेटा सेज 95% people are weak in the first one, and surprisingly only few institutions are taking initiative to cater to this. So even after knowing the fact, data बताया आपको, उसके आगे भी बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी हमें चीजें तो बहुत सारी आती है, पर कहीं ना कहीं 95% लोग आज भी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं. So a big round of applause for Research Culture Society and Scientific Research Institute for coming up with this initiative, jahan par they are putting in a bit of effort to improve the communication skills of the people associated. So thank you to Research Culture Society for coming up with this initiative, and I'm sure आपने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इससे ऑडियंस जरूर बेनिफिट होगी. And as already mentioned by the organizing committee, that today is the third day, and third day is exclusively dedicated to building up effective communication skills. And when we say effective communication skills, जिसके ऊपर आज फोकस होगा, और इसके अलावा एक पार्ट जो है, जो मेरे इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का जिस्ट है, मैं उसके ऊपर फोकस करूंगी. So we need to understand what are visual skills, non-verbal, oral communication, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आजकल मैक्सिमम चीजें फोन पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें उसके थोड़े से एटिकेट्स जो है
वो भी सीखने हैं। कैसे हम अपने आप को टेलीफोन पे जब कम्युनिकेट करते हैं अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। तो यही सारी चीजें जो है आई वुड बी एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स थ्रू माय अपकमिंग स्लाइड्स. Now, when we say communication, effective communication, communication skills is very important. We need to understand the 7 C's of communication, which were propagated by James C. Bergen. अगर हम कहते हैं अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपने करने हैं तो वी नीड टू, जब भी आप बात करो किसी से, योर कम्युनिकेशन should be such that it should have coherence. Coherence means there should be proper link between the sentence that you are expressing and the sentence that is going to come. Then comes concreteness. Concreteness मतलब आप जो भी बात कर रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत जनरलाइज ना हो, वो थोड़ी सी स्पेसिफिक हो कि सामने वाला आपके ऊपर बिलीव कर सके. Then there has to be courtesy. Courtesy means जब भी आप बात करो, try to speak from the perspective of the listener. मैं जिससे बात कर रही हूँ आज, अगर मैं ये सेशन में बोल रही हूँ तो डेफिनेटली द ऑडियंस इज 18+ मैच्योर है, कहीं ना कहीं कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनसे बात करने के लिए मैंने ये पर्टिकुलर मोड जो है अपना प्रेजेंटेशन के थ्रू ये अडॉप्ट किया है. पर सपोज अगर आज मैं छोटे बच्चों के लिए कोई सेशन ले रही होती, फिर 4-5 साल के लिए, जिनका इतना मेंटल लेवल अभी हाई नहीं है, तो मैं ये मोड अडॉप्ट नहीं कर सकती थी. सो व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग, प्लीज adjust your way of communication with the audience. Then comes करेक्टनेस. करेक्टनेस मतलब जितनी मेरी बातों में सच्चाई होगी, जितनी करेक्ट इंफॉर्मेशन मैं दूंगी, उतना ही लोग मेरे में इंटरेस्ट लेंगे. देन कम्स क्लैरिटी. क्लैरिटी जो है वो कई तरीकों से आ सकती है, ऑल्दो आगे मैं और एम्फसाइज करूंगी, बट फॉर योर वी नीड टू नो दैट जैसे मैं कम्युनिकेट अगर कर रही हूँ एंड इफ माई वॉइस इज नॉट क्लियर, if there is some issue related to network, if there is so much of noise around, definitely I would not be able to impart clarity in my communication. So we need to ensure कि जब भी आप बात करो आप स्पष्ट बोलो, सही बोलो और बहुत अच्छे माहौल में बोलो. नेक्स्ट कम्स कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस मीन्स अगर मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली आई शुड माई सेल्फ बिलीव इन दैट एंड आई शुड बी कॉन्फिडेंट वाइल एक्सप्रेसिंग इट. क्योंकि यदि मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगी, मैं खुद ही कंफ्यूज रहूंगी, तो अपनी ऑडियंस को कैसे कन्विंस कर पाऊंगी. नेक्स्ट कम्स concreteness. I think this has been repeated. Concrete means always whenever you are communicating, you should see that you are more specific and not generalized. Next comes communication comes in many forms. अगर हम कहें non-verbal communication, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो it's not just my words that you are focusing upon. Although on online mode में इतना non-verbal communication का इस्तेमाल नहीं हो पाता, but whenever there is face-to-face communication, तो आप हमारी आंखों पर, हमारे बोलने के तरीके पर, हमारे हैंड मूव के जो गेस्चर्स है, कितनी सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हो. So they all come under non-verbal communication. So communication is not only about words, but even about जो हम कर रहे हैं या जो हम बता नहीं रहे पर हमारे एक्शंस के थ्रू हम बहुत कुछ बता जाते हैं. Then comes oral communication. That is a communication जो सिर्फ हम सुनकर, जिसको हम जहाँ किसी को अगर देख नहीं पा रहे, सिर्फ सुन पा रहे हैं, तो वो भी communication है. Then comes written communication, whereby we are trying to interpret things by whatever we have received in the written format. And then comes verbal communication. Although written communication जो है, that is a part of verbal communication. क्योंकि verbal communication means using words in communication. और हम words कैसे use कर सकते हैं? या तो बोलकर या लिखकर. अगर मैं बोल रही हूँ, that is oral communication. It is also a part of verbal communication. यदि मैं कुछ लिखकर communicate कर रही हूँ, तो that is also a part of verbal communication, but that is written verbal communication. इसको थोड़ा और अगर हम आगे समझने चाहे तो I need to use my specs. Just one second. So when we say verbal communication, so whenever you want to create an impact by using words, आपको क्या करना चाहिए? You should use a very strong, confident and speaking voice. आपकी जो आवाज है उस पे दम होना चाहिए, आप पे बड़ी एनर्जी झलकनी चाहिए कि सामने वाला जो है वो आप पे इंटरेस्ट ले, आपको सुनना चाहे. Then you should always use active listening. Verbal communication is not just about expressing yourself. It is also about listening to what your audience wants to express and then improvising yourself. Avoid filler words. बहुत unnecessary communication नहीं होना चाहिए. Please to the point बात करें, स्पष्ट बात करें. Then avoid jargons.
jargons मतलब जो बहुत टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, जैसे मेडिकल फील्ड में टेक्निकल वर्ड्स आएंगे हमारे, अगर हम कॉमर्स मैनेजमेंट के तो हमारे भी कुछ टेक्निकल वर्ड्स है which is not very easy for people to interpret. तो इस टाइप के वर्ड्स जो है हमें वर्बल कम्युनिकेशन में अवॉइड करने चाहिए. Then comes non-verbal communication. इसमें we should notice on how our emotions, how we express our emotions. क्योंकि many a times what happens, suppose मैं एकदम एक जोर से आपको कोई बात कह दूं, तो मे बी मेरी बात बिल्कुल सही है पर मेरे बोलने का तरीका इतना खराब है that you will take it wrong. You will not feel good about it, or you may not be able to implement it. So you should always see how well you are associating emotions with your communication. Then be intentional about your non-verbal communications. कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो अनइंटेंशनली हो जाता है, सबकॉन्शियसली हम कई सारी चीजें कर जाते हैं. तो थोड़ा सा कॉन्शियस अप्रोच डेवलप करिए. आपको यदि लगता है कि आपकी किसी पर्टिकुलर एक्शन से सामने वाले को बुरा लग सकता है, किसी सिचुएशन में हंसने से मामला बिगड़ सकता है, तो बी वेरी पर्टिकुलर एंड यूज योर माइंड व्हाइल यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देन कम्स विजुअल कम्युनिकेशन. अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो विजुअल कम्युनिकेशन जो है इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग थ्रू विजुअल्स. अगर मैं आपको कुछ पिक्चर से बता रही हूँ, कुछ वीडियो से बता रही हूँ, rather than using words in my communication, I'm going in for visual communication. Written communication जब भी आप करते हो, you should always ensure कि आपकी जो language है वो बहुत simple हो. It should be easy to interpret by the receiver of the message. And इसमें टोन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो लिखने का तरीका है that definitely holds lot of impact. जैसे कि जब हम कुछ लिखते हैं, अगर मेरे को लगता है कोई पर्टिकुलर पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बोल्ड कर दूं, उसको मैं इटैलिक्स में डाल दूं या मैं उसको हाईलाइट कर दूं, तो द रिसीवर ऑफ द मैसेज विल कम टू नो दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैसेज. एंड इवन व्हाइल राइटिंग हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए. लाइक व्हेनेवर वी आर राइटिंग वी शुड ऑलवेज बिगिन विद द इंट्रोडक्शन, come to the main theme, and then conclude. So if you follow a particular systematic approach to write, definitely it's going to create an impact on the receiver. Visual communication की अगर हम बात करें तो a good visual communication is all about design. It is based on measuring. आप कितने अच्छे से, कितने क्रिएटिव वे में अपनी चीजों को बता सकते हो. जैसे कि आपने कई जगह देखा होगा, जब हम रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं बाय रोड जा रहे होते हैं, तो हमें बताया नहीं जाता कि आपको राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है. बस एक एरो बना दिया जाता है, उस विजुअल से हम समझ जाते हैं कि हमको कहाँ पर मुड़ना है या इस पर्टिकुलर एरिया के लिए रास्ता कहाँ से होगा. अगर कहीं पर एक दो बोन्स क्रॉस करके रख दिए और ऊपर एक स्केलेट, एक फेस है, तो वी अंडरस्टैंड कि इट्स अ साइन ऑफ डेंजर एंड वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट ओवर हियर. वहां लिखा नहीं है पर हम उस इमेज को देखकर ही समझ जाते हैं. जैसे कि कहीं रेड सिग्नल होता है, हमारी गाड़ी रुक जाती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन. ग्रीन सिग्नल होता है, हमारी गाड़ी हम आगे बढ़ा देते हैं. और अगर मैं आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में बताना चाहूँ तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका. जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, ये पिक्चर से पता चल रहा है, व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यू लव समबडी, अगर आप बोल भी नहीं रहे हो बट योर एक्शंस विल शो दैट यस यू आर इन लव विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. रिटन कम्युनिकेशन, हम कुछ लिख कर बता रहे हैं. और विजुअल कम्युनिकेशन जहां पर हम सिर्फ एक इमेज दिखा रहे हैं, सामने वाला समझ जा रहा है. मैं बोलूं आंख, या मैं आपको सिर्फ एक आंख का पिक्चर दिखा दूं, पिक्चर देख के समझ जाओगे आप कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ. Now, what is verbal communication? Verbal communication is intrapersonal communication, interpersonal communication, oral communication, and public communication. Now, when we say interpersonal communication, what is interpersonal communication? When two or more people are communicating with each other, it comes under the category of interpersonal communication. Then comes intrapersonal communication. Many a times हम अकेले बैठे होते हैं पर तभी भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बैठी हूँ, मैं खोई हुई अपनी थॉट्स में, so am I not communicating over here? Yes, I'm communicating over here, but I'm communicating with myself. मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है. So that is also verbal communication. It's called as intrapersonal communication, that is communicating with yourself. Then comes oral communication, जब भी हम शब्दों का प्रयोग करके बातें करते हैं, that's oral communication. And public communication, when we are communicating with a youth, normally जो ये public speaking होती है, when we have to communicate with a large audience, that comes under the category of public communication. If we try to focus on
a few examples of verbal communication. तो इसके examples आते हैं जैसे when we are communicating in our family, it's an example of verbal communication. Then when we are communicating with our friends or colleagues, then we are when we are just having some face to face talk, like अगर आज मैं ये ऑनलाइन मोड से भी कनेक्ट हो रही हूँ आपसे, तो this is also an example of verbal communication. Now, how can we improve our verbal communication skills? अगर हम बोले verbal communication skills बहुत important है, और communication में major part जो है वो verbal communication का ही है, especially oral communication का. So whenever you speak to somebody, speak with confidence. Show that whatever you are speaking, you genuinely believe in it. Then it is also about the art of listening. Don't just speak up, also lend a listening ear. क्योंकि जब आप सुनते हो तो आप definitely कुछ सीखते हो. Then it's verbal communication में आपकी body language भी बहुत important है. आप क्या बोल रहे हो वो ही सब कुछ नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो वो भी बहुत important है. और आप जितने friendly रहोगे, whenever you are talking with people, if you make the other person comfortable, हो ही नहीं सकता कि उसको आप में interest ना आए. Now verbal communication skills की जो और भी कुछ tips है, इसको अगर आप और डिटेल में जानना चाहे तो ये इमेज बहुत अच्छे से बताएगा. You should always listen carefully. Communication skill का सबसे पहला skill जो है, that is the art of listening. Then comes maintain eye contact. Whenever you maintain a good eye contact with the receiver of the message, or whenever you are communicating with somebody, definitely it leads to an impact. It leads to belief of trust. Then comes avoid distractions. जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अगर बात करते करते आप मोबाइल देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, घड़ी देखो, ये distractions जो है, ये थोड़े से मैं बोलूंगी कि they do not come under good manners. And secondly, distractions के कारण हमारा जो attention span है, that also gets affected. And do not interrupt the speaker. जब भी कोई speaker आपसे कुछ बोल रहा है, please let him or her complete the sentence. बात खत्म हो जाए, उसके बाद आप बीच में बोलो. अदरवाइज अगर आप बीच में टोकते हो तो सामने वाला भी इरिटेट होता है और उसका जो बात करने का जो फ्लो है वो भी चला जाता है. Then be clear while speaking. आप जब भी बात कर रहे हो, please be clear, specific, sound confident. अगर आपकी बात करते वक्त क्लैरिटी नहीं होगी तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. Focus on non-verbal communication cues. कई बार क्या होता है कि मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ और बात करते करते मैं आपकी आंखों में नहीं देख पा रही हूँ, मैं बोल तो रही हूँ पर मैं नीचे आंखें देख रही हूँ या यहाँ वहां देख रही हूँ. इसका मतलब है बोल तो कुछ भी लूँ, पर जो इंटेलिजेंट इंसान होगा वो मेरी आंखों की भाषा पर जाएगा. यू विल बिलीव ओनली व्हाट माय आईज आर सेइंग. सो माय आईज आर सेइंग कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो झूठ बोल रही हूँ. So definitely you should always pay attention to non-verbal cues whenever you are communicating with somebody. Be confident. Confidence is the key. आप जितने confident रहोगे उतना ही आपका एक अच्छा impact generate होगा, आपकी personality उतनी ही अच्छी रहेगी. Be open-minded. Means whenever you are communicating with somebody, do not just carry a baggage in your mind and then try to communicate with people. अगर मैं जैसे आज आपसे अगर बात कर रही हूँ और मैं पहले से अपने मन में कई धारणाएं बना लूं, अरे वो तो बहुत बोरिंग होगा, उसका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, उसको वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, ये सब दिमाग में लेके यदि मैं किसी से बात करूंगी तो मैं उसको कभी भी समझ नहीं पाऊंगी. नो मैटर द स्पीकर इज वेरी गुड, बट मैं उसको समझ नहीं पाऊंगी बिकॉज आई एम कैरिंग अ बैगेज. सो बी ओपन माइंडेड. डू नॉट just follow whatever opinion has been forwarded to you. Make your own opinion. Then be a soft spoken person. ऐसे लोग जो थोड़ा सभ्यता के साथ बात करते हैं, जो थोड़े माइल्ड होते हैं while communicating with people, they are always liked by people. They are always taken seriously by people. And when you are harsh, rude, like ill-mannered, you are never liked by people. So please change yourself. Then represent the information in short. Brevity is the key. Brevity मतलब आप जो भी बोल रहे हो, कोई भी बात को बताने के लिए बहुत लंबा तरीका भी हो सकता है और छोटा से तरीके एक शॉर्ट वन लाइन में भी आप बता सकते हो या बहुत कम शब्दों में भी आप बता सकते हो. तो जहां तक हो सके कम शब्दों में चीजों को बताओ. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज इफ आई हैव टू टेल यू कि मैं कल मार्केट गई थी और मैंने एक बहुत सुंदर ड्रेस तो देखा, वो खरीदा और आज मैं उसी को पहन कर आई. अब ये बात को करने का तरीका दो हो सकता है. पहला, पता है कल मैं ऑफिस से आई, मैं बहुत थक गई थी, उसके बाद मेरे को लगा मार्केट हो ही आती हूँ, आई नीड अ न्यू ड्रेस.
फिर मैं बड़ी मुश्किल से तैयार होके फिर मैं मार्केट गई, वहां मैंने बहुत सारी दुकानें घूमी, उसके बाद जाकर मुझे एक ड्रेस पसंद आया, आई परचेज दैट ड्रेस एंड आई एम वेयरिंग दैट ड्रेस टुडे। इट वाज सो बोरिंग, इतना लंबा। बात तो सिर्फ इतनी कहनी थी कि मैंने कल एक नया ड्रेस खरीदा, आज मैंने ये ड्रेस पहना है। अब इसी को मैं इतना लंबा खींच के अगर बोलूंगी तो नेक्स्ट टाइम आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहोगे। सो प्लीज whenever you are communicating with somebody, keep it short, then only you would be liked by people around you. Then comes oral communication. Oral communication takes place normally in face-to-face conversations, group discussions, telephone calls, and other circumstances in which spoken word is used to express the meaning. अब कोई भी बात करने का तरीका, यदि मैं उसको खुद बात करके सामने वाले से मिलकर उसके आमने सामने बैठकर अगर उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो दैट विल कम अंडर oral communication. There are certain advantages of oral communication. सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है कि इसमें इम्पैक्ट बेटर जनरेट होता है, हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड मेनी अ टाइम्स यदि मैं कोई बात किसी से करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत लोगों को पता ना चले या सिर्फ हम दो लोगों के बीच में रहे, इसका कोई रिकॉर्ड ना रहे, तो ओरल कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बूम। Non-verbal communication is about communication through expressions. जैसे कि अगर मैं चेहरे से एक्सप्रेस कर दूं तबीयत ठीक, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज ये उदास है, तो the person may not say anything, but by just looking at the face of the person, we can say that the person is happy, the person is sad, the person is not feeling good, the person is angry, whatever. Our face is the mirror of our heart. Whatever is going in our heart, it will be very well reflected through our face. Next comes touch. We can communicate through touch also. जैसे अगर आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं बहुत सैड हूँ, कोई मेरा अगर बस मेरे सर पे हाथ रख दे या बस मेरे हाथ पकड़ के इतना कह दे, डोंट वरी आई एम देयर विथ यू, so that also speaks so much in itself. ये सिर्फ हाथ ही पकड़ ले, I'll understand that I do have a support system, there is somebody who is there by my side. Then body movements and posture. हम किसी से कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं उससे भी पता चल जाता है कि हाउ क्लोज वी आर टू दैट पर्सन। सपोज अगर मैं किसी के बहुत पास जाके बात कर पा रही हूँ, डेफिनेटली इट सेज दैट आई एम क्लोज टू दैट पर्सन और वी आर गुड फ्रेंड्स। अगर मैं किसी के हमेशा दूर रह के ही बात कर रही हूँ, तो इट शोज दैट मे बी दैट देयर इज the distance between the two people. That also says what relationship these two people are sharing. Eye contact. जब हम किसी के साथ आंखों में आंखें मिला के बात कर सकते हैं, इसका मतलब हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हम सच्चे हैं और हम जो जो भी बोल रहे हैं वो हमारे दिल से निकल रहा है। पर अगर हम किसी की आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर पा रहे, मतलब कि हमारे में सच्चाई की कमी है। नेक्स्ट कम्स गेस्चर्स। जैसे मैं अगर आपको कहूँ वेल डन, so these gestures, we don't need to use words along with this. ये gestures ही अपने आप में complete होते हैं। Now comes effective phone communication. जब हम इतना phone पे बात करते हैं, तो definitely हमें कुछ उसके भी skills अपने improvise करने के लिए कुछ tips की जरूरत है। जैसे कि जब भी आप किसी से phone पे बात करते हो, you should always address the caller by name. जैसे यदि मुझे किसी का phone आया, बोलूँ हाँ, oh hi Riya, tell me. इतना अगर मैंने बोल दिया तो दैट पर्सन विल फील दैट आई एम सो मच कनेक्टेड टू दैट पर्सन, वो काफी अपनापन सा झलकता है। देन अवॉइड नेगेटिव टोन और लैंग्वेज। जब भी आप बात करते हो तो अगर आप बहुत ज्यादा आई मी माई सेल्फ ये सब करके बातें करते हो तो दैट एड्स टू अ बिट ऑफ नेगेटिविटी। जितना हो सके आई मी माई सेल्फ आपको कम करना चाहिए। अवॉइड इम्प्लाइंग दैट यू वोंट और you won't or that the other party is wrong by the tone of your voice. अगर सामने वाला गलत भी है तो आपकी टोन जो है वॉइस की वो इतनी माइल्ड होनी चाहिए कि उससे सामने वाले को कहीं भी आप रूड ना लगो। यूज अ सॉफ्ट टोन ऑफ वॉइस। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से फोन पे बात करते हैं, उसी में इतना कन्विंस हो जाते हैं दैट वी डेवलप अ सॉर्ट ऑफ फेथ ऑन दैट पर्सन, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ योर वॉइस। देन टेक एक्यूरेट मैसेजेस। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना है तो प्लीज टेक एक्यूरेट मैसेजेस। आप सही चीजें लिख लो, अच्छे से रिकॉर्ड कर लो, ताकि कहीं भी गलतियां होने का चांसेस जो है वो कम से कम हो। कहीं आपको कुछ समझ भी नहीं आया, डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग, आस्क द अदर पर्सन until unless जब तक चीजें आपको क्लियर नहीं हो जाती। आस्क ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां तक वो फोन पे बहुत लंबी बातें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर बहुत लंबी बातें हैं तो प्लीज गो इन फॉर a written communication or a face-to-face communication, but avoid lengthy telephonic conversations. Then be ready to listen. जब आप फोन पे भी किसी से बात कर रहे हो,
वी शुड नो हाउ टू लेंड अ लिसनिंग ईयर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस बोलते ही जा रहे हो और सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे. ये सारे बैनर्स आते हैं. इसके अलावा ये तो मेरे को जो पॉइंटर्स मिले, आई पर्सनली फील कई लोग जब फोन पे बात करते हैं और ग्रुप पे बैठे हो वहीं पे जोर जोर से बात करना चालू कर देते हैं. दैट इज वेरी नेगेटिव. अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, यू शुड ऑलवेज से एक्सक्यूज मी, इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉल, और फोन लेकर आप बाहर जाइए. आप एक ग्रुप के बीच में अपनी फोन पे बातें मत कंटिन्यू करिए. द अदर पीपल दे गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ इट. नेक्स्ट है, आप फोन पे बहुत जोर जोर से बातें ना करिए, because that is also annoying for the people around you. So these are certain telephone ethics that you need to keep in mind while communicating on the phone. ये तो सारी जो है जनरल बातें होगी related to communication. And now we all know that developing good communication skills is the need of the hour. पर अब हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से मंत्र है जिसे हम अगर सीख जाए तो हम एक इम्प्रेसिव इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर बन सकते हैं, हम भी बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. तो उसके लिए आपको सिर्फ 6 से 7 कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी. अगर आपने, और पूरे टिप्स भी दूंगी, यदि आपने इन पर काम कर लिया तो हो ही नहीं सकता that you would not come under the category of an influential speaker. So if you really want to improve yourself, अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो आपको ये जो जोन का जो ये क्राइटेरिया है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. वी ऑल आर लिविंग इन आवर कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन मतलब हम जैसे है भैया ऐसे ही अच्छे, आपको जमे तो ठीक है, नहीं तो प्लीज आप हमारे लिए नहीं बने. If you are living with this kind of attitude, then you are living in the comfort zone and you need to bring about an improvement in yourself. This improvement will come when you are ready to step out of your comfort zone and step into the fear zone. जहाँ पे थोड़ा सा आपको डर लगेगा कि अरे मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कर सकता हूँ कि नहीं, काफी सारे आपको लेफ्ट एंड राइट वाली चीजें आएगी. बट इफ यू आर डिटर्मिन्ड कि नहीं मुझे तो करना ही है, मुझे तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने ही है, then you will step into the learning zone जहाँ पर शायद आज आप है. और जब आप लर्न कर, if you're ready to learn anything, if you're ready to work over yourself, if you're ready to improve, then you will step into the growth zone. And this growth zone that I'm talking about today is all about becoming an influential speaker, becoming an impressive communicator. So the learning outcomes of this session would be, सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा assessment test लूंगी. I would request you all कि आप लोग एक pen and paper लेके बैठे. I hope that you all are having a pen and paper with you all. Hello? I would request the audience कि आप लोग please एक pen और paper लेके बैठे और उस पेपर में आप सिर्फ 1 से लेकर 20 तक नंबर्स लिख दे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 till 20. क्योंकि मैं आपको 20 क्वेश्चंस पूछूंगी जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को असेस कर पाओगे. सर सबने शायद पेन और पेपर लिया होगा. हाउ विल आई कम टू नो दैट? थ्रू माय चैट बॉक्स. प्लीज लेट मी नो आपके पास पेन और पेपर है कि नहीं. इट रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज अगर हम समाज में रिस्पेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसी को मिलता है जिसको बहुत अच्छे से बात करना आता है. So अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनते हो तो definitely you will receive lot of respect amongst the people around you and in the society as well, and you will also grow in your profession. Then the people who are great communicators, they know how important it is to build relationships. क्योंकि आज का जो जमाना है ये नेटवर्किंग का जमाना है. जितने लोगों से मेरी पहचान होगी उतना ही हमारा, मेरे लिए सर्वाइवल आसान होगा. क्योंकि more people you know, better it is for you. और हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, ओरखान एकले मोटी खान, मीन्स मोर पीपल यू नो बेटर इट इज फॉर यू. देन वन ऑफ द एडवांटेजेस इसके जो ये अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप देखना आपको आपका सब्जेक्ट का नॉलेज जितना भी हो, आपको आपका स्किल कितना भी इम्प्रूव हो, लेकिन अगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है आपके पास तो आप प्रमोट नहीं हो सकते. सो इट इज जस्ट गुड कम्युनिकेटर्स who have maximum opportunity to be promoted. And finally, जो भी सक्सेसफुल लोगों की हम लिस्ट तैयार कर ले दुनिया में, तो वो सारे सक्सेसफुल लोग जो है दे आर ऑल गुड कम्युनिकेटर्स. सो आज जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, आई वांट टू सी यू ऑल एज सक्सेसफुल पीपल. और थोड़ा सा जो कॉन्ट्रीब्यूशन मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ वो आगे की स्लाइड्स में आएगा. And you know, dear participants, it is just appearances that makes impressions.
अगर मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, तो वो सिर्फ मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के लिए काफी है, पर मेरे में क्या क्वालिटीज है, हाउ इम्पैक्टफुल आई एम, what personality I carry, it is that which is going to create an impact. So you may be good looking, you may not be good looking, it is not at all important, but what qualities you carry, what personality you have is what is going to make you. So let us have a quick personality test now. So are you all ready to assess yourself, dear participants? Ready? Okay, fine. मैं chat box access कर रही हूँ through my mobile. So the first question, it is how will you rate yourself when talking about intelligence? अगर मैं पूछूं आप कितने intelligent हो, तो आपका क्या आंसर होगा? I'm very intelligent, I'm average, I'm dull. तो A, B, C, अगर आपको लगता है बहुत इंटेलिजेंट समझते हो अपने आप को, तो आप A पे टिक मार दो. एंड प्लीज डियर पार्टिसिपेंट्स, आप आंसर्स बहुत ऑनेस्टली देना, क्योंकि ये रिजल्ट किसी को नहीं शेयर करना, ये आपके personal assessment. It's going to help you. Done? Shall I move on to the second question? Second question says, how will you rate yourself when talking about technical skills? अगर आपके मैं टेक्निकल स्किल्स की बात करूं, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स कैसे है? एक्सेलेंट, गुड, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है. ए, बी, सी, किसी एक में टिक मार दो आप. Done? Shall I move on to the next slide? Okay. Question number 3. How well are you able to communicate with others? आपकी communication skills कैसे है? मेरे communication skills excellent है. I have good communication skills. I have no communication skills. मैं लोगों से बात नहीं कर पाती. आप क्या सोचते हो अपने बारे में? A, B और C. Number 4. How do you solve your problems? जब भी कोई जिंदगी में समस्या है, सबको आती है, प्रॉब्लम्स आती है. हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? दिमाग लगा के, लॉजिकली, समटाइम्स विदाउट लॉजिक, हमेशा बिना लॉजिक के, मतलब हमेशा ऐसे ही तुक्के में. देखा जाएगा, कभी तुक्के में, कभी दिमाग लगा के. बी, ए, बी, सी, क्या है आपका आंसर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ फोकस्ड आर यू टुवर्ड्स योर गोल्स इन लाइफ? सी, वी ऑल हैव गोल्स. तो हमारे गोल्स के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं? बहुत फोकस्ड हूँ, मुझे पता है मेरे गोल्स क्या, और उनको अचीव करने के लिए मैं जी जान लगा दे रही हूँ. मैं थोड़ा सा ही फोकस्ड हूँ, मैं बिल्कुल फोकस नहीं हूँ, अरे देखी जाएगी टाइप का एटीट्यूड है मेरा. सो ए, बी और सी, चूज वन. क्वेश्चन नंबर 6. आर यू एबल टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स व्हेन असाइन्ड एनी टास्क? जब भी आपको कोई काम दिया जाता है, क्या आप अपने उसमें अपना दिलो जान लगा के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हो कि नहीं, काम मिला है, मुझे बहुत ही अच्छे से करना है? यस, समटाइम्स यस, कभी अच्छे से कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती. नो, कभी नहीं. टास्क मिलता है तो मिलता है, हमें कुछ नहीं करना, हम जैसे है वैसे ही रहेंगे. if this is your attitude, please stick on C. Then comes the next question number 7. Are you ready to face challenges? Challenges सबकी लाइफ में आते हैं, तो क्या आप challenges से डर जाते हो या आप नहीं डरते? इसका आपको आंसर करना है. So are you ready to face challenges? Yes, I'm ready to face challenges. मुझे challenges से डर नहीं लगता. Sometimes yes, कभी face कर लेती हूँ, कभी डर जाती हूँ. No, challenges always scare me. मैं हमेशा challenges से डर जाती हूँ. C, choose any one. Number 8. Do you find yourself inferior to others? क्या आप हमेशा, आपको inferiority complex है? क्या आप अपने आप को दूसरों से हमेशा कम समझते हो? No, मुझे कोई inferiority complex नहीं है. Sometimes yes, कभी कभी आ जाता है. Yes, मुझे हमेशा inferiority complex रहता है. So choose any one, A, B or C. Next is question number 9. Do you need someone to motivate you? क्या आप हनुमान जी जैसे हो जिसको हमेशा external motivation की जरूरत पड़ती है? तुम्हारे में है, तुम कर सकते हो? No, I don't need anybody to motivate myself. मैं अपना खुद motivate कर लेता हूँ. Yes, sometimes I need motivation. Yes, always. मुझे हमेशा किसी से motivation की जरूरत पड़ती है, मैं अपने आप को motivate नहीं कर पाता. Question number 10. What type of learner you are? आप किस टाइप के learner हो? Very fast, बहुत जल्दी चीजें समझते हैं और सीखते हैं. Good learner, ठीक ठाक स्पीड में, बहुत फास्ट भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है. Average learner, I'm a little slow as far as learning is concerned. A, B और C. Then do you lack interest in things you do? आप जो भी काम करते हो, क्या उसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट की कमी रहती है? Yes, sometimes I lack interest. Sometimes yes, कभी इंटरेस्ट कम होता है, कभी नहीं होता. No, मुझे हमेशा
इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 12, डू यू बिलीव इन शॉर्टकट्स टू सक्सेस? आपको लगता है कि सक्सेस ओवरनाइट मिल जाता है? नो, आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट। समटाइम्स यस, यस ऑलवेज। आर यू अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क? क्या आपको मेहनत से डर लगता है? नो, आई एम नॉट अफ्रेड। समटाइम्स आई एम अफ्रेड, यस आई एम ऑलवेज अफ्रेड। Question number 14. Do you think you are a balanced person? Yes, I'm a balanced person. Sometimes I'm balanced. No, I'm not a balanced person. Do you have confidence in you? क्या आपको लगता है कि आप confident हो? Yes, I'm a confident person. Sometimes I lose confidence. I lack confidence. I'm not a confident person. Question number 16. Are you aware of your internal qualities? हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि हमें ना दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, किसमें क्या कमियां हैं या किसमें क्या अच्छाइयां है, पर हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता। तो क्या आपको अपनी अच्छाइयों के बारे में पता है? यस, आई एम अवेयर। लिटिल बिट, थोड़ा बहुत पता है? नो, आई एम नॉट अवेयर। नंबर 17, आर यू अफ्रेड ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड? क्या आपको बाहरी दुनिया से डर लगता है? यस, मुझे बाहर की दुनिया से डर नहीं लगता। समटाइम्स आई एम अफ्रेड, यस आई एम ऑलवेज अफ्रेड। मुझे हमेशा बाहर की दुनिया से डर लगता है। आर यू कंसिस्टेंट इन योर बिहेवियर? क्या आपका बिहेवियर हमेशा एक जैसा होता है कि एकदम अप एंड डाउन होता है? यस, आई एम कंसिस्टेंट। समटाइम्स आई एम कंसिस्टेंट। नो, आई एम नॉट कंसिस्टेंट। डू यू लाइक सॉल्विंग पजल्स? क्या आपको पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है, दिमाग को हमेशा बिजी रखना अच्छा लगता है? यस, एट टाइम्स। नो, नॉट एट ऑल। डू यू हैव एस्पिरेशंस इन योर लाइफ? क्या आपकी जिंदगी में आपके कुछ सपने हैं? यस, आई हैव मेनी एस्पिरेशंस। थोड़े बहुत एस्पिरेशंस है, नहीं मेरे कोई एस्पिरेशंस नहीं, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है। अब रिजल्ट्स की बात आती है, तो रिजल्ट्स आपको कैसे निकालने हैं? आपने ये जो भी क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं, आपको इसमें मार्क्स देने हैं। जितने भी ए है आप उनका टोटल कर लीजिए, जितने भी बी है आप उनका टोटल कर लीजिए, और जितने भी सी है आप उनका टोटल कर लीजिए। सपोज अगर आपके ए में आ रहा है 5, बी में आ रहा है 10 और सी में आ रहा है 5, तो आप टोटल सबके नीचे लिख लीजिए। लिख लिया? यस। अब जितने भी ए है प्लीज एक क्वेश्चन, एक ए का नंबर है 10, सो गिव 10 मार्क्स टू, अगर आपके सपोज ए के 5 है तो 5 इंटू 10 कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 10। जो भी ए का टोटल है मल्टीप्लाइड बाय 10, जो भी बी का टोटल है मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड जो भी सी का टोटल है इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर इनको ऐड करिए, डिवाइडेड बाय 200 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड दिस विल गिव यू परसेंटेज। आपका जो रिजल्ट है वो आएगा बिटवीन 75% to 100%, 50 to 75% एंड बिलो 50%। जो भी है आपको अपने आप को सच बताना है। अगर आपका जो आंसर है, आपका जो रिजल्ट है वो आया बिटवीन 75 to 100%, इट मीन्स आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, एंड यू हैव एन इंप्रेसिव पर्सनालिटी। दिस प्रेजेंटेशन विल होल्ड लिटिल वैल्यू फॉर यू। अगर आप 50 to 75% है, इट मीन्स आप like you are neither too bad nor too good. Definitely there is scope for improvement. So this presentation will hold some importance for you. So you need to pay attention on the slides to follow. And if you're below 50%, it means you have a little weak kind of personality. You are not confident about yourself, but definitely ये presentation के बाद you will feel better about yourself, and pay attention to all the slides to follow. Done? Now you need to ask 2 questions to yourself. अगर आपको communication skills improve करने हैं, एक हम सिखाते हैं communication में, that is SWOT analysis of your strength, weaknesses, opportunities and threat. So आपको सबसे पहले अपने आप से question पूछना है, what I think of myself. मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, अपने बारे में क्या सोचती हूँ? क्योंकि हमारे दिमाग में दिन भर अपने आप को लेके बहुत थॉट्स चलते हैं। कई बार हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, कई बार हम अपने बारे में बुरा सोचते हैं। So whatever you think about yourself, you need to ask that to yourself. Then what I talk to myself, मैं अपने बारे में क्या अपने हमेशा मन में बोलता रहता हूँ। पॉजिटिव बातें कहता हूँ कि नेगेटिव बातें कहता हूँ? आप जितनी पॉजिटिव बातें कहेंगे अपने बारे में, डेफिनेटली यू विल स्टार्ट, वो चीजें आपके साथ होने लगेगी।
आप जितना अपने बारे में नेगेटिव बोलोगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे तो कुछ बनता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ. एंड इफ दिस इज व्हाट इज गोइंग इन योर माइंड, you will never be able to improve your communication skills. So if this is going in your mind, you need to change it. You know why? Because when we talk about communication skills, हम बाहर के लोगों से कितना भी अच्छे से बात कर ले, पर यदि हम अपने आप से अच्छे से बात नहीं कर रहे, अपने आप से हम सॉफ्ट नहीं है, तो हम बाहर के लोगों के साथ कभी अच्छे हो ही नहीं सकते. So the first tip to improve your communication skills is be nice to yourself, because communication begins with you. And for that, you should talk to yourself like you would to someone you love. जैसे हम जिसको भी प्यार करते हैं उससे कितने प्यार से बातें करते हैं, कैसे हो आप, क्या चल रहा है बेटा, लाइक दिस. तो जब हम दूसरों से ऐसे प्यार से बात कर सकते हैं तो अपने आप से क्यों अच्छे से बात नहीं कर सकते. तो दूसरों को प्यार जताने के पहले खुद से प्यार करना सीखिए. और उसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस में लाना है, जैसे हम कई बार ऐसे ही अनजाने में बोलते हैं, ओ माय गॉड, एक छोटी सी गलती होगी, आई एम सो स्टूपिड, मुझसे तो कुछ बनता ही नहीं है. क्यों बोलना आई एम सो स्टूपिड? स्टार्ट, यू नीड टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड. तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? रादर देन कॉलिंग योरसेल्फ स्टूपिड, यू शुड से ओप्स, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक, गलती हो गई, ठीक है, गलती सबसे होती है. हम कई बार कहते हैं कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, नो वन एवर लाइक्स मी. व्हाई टू से दिस? से कोई पसंद करे ना करे, बट आई लाइक माई सेल्फ. स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट लाइकिंग योर सेल्फ. आई एम नॉट अ गुड पर्सन. हम छोटी छोटी बातों में कहते हैं मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ. क्यों बोलना? आई मेड सम मिस्टेक्स एंड आई ओन दैट. ठीक है, गलतियां मुझसे हो गई है, मैं जानती हूँ उसको, बट आई विल वर्क अपॉन दैट, बट दैट डज नॉट मेक मी अ बैड पर्सन. आई एम स्टक दिस वे, आई कांट चेंज. मैं तो ऐसी हूँ, मैं बदल नहीं सकती. ये क्यों बोलना? उसके बदले बोलो आई एम इवॉल्विंग. मैं रोज बदल रही हूँ, रोज सुधर रही हूँ, रोज इंप्रूव कर रही हूँ. आई नेवर डू एनीथिंग राइट. मैं तो कुछ भी सही नहीं करती. नेगेटिव थॉट, उसको कैसे चेंज करना है आपको? आई हैवंट फिगर्ड इट आउट येट, बट आई विल. आई एम नॉट गेट गुड इनफ. ये हम कई बार अपने आप को बहुत ही अनवर्दी फील कराते हैं कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ. Don't ever say that to yourself. Always say, I am so worthy, I am so important, I am so valuable. जैसे जैसे आप अपने दिमाग में अपनी लैंग्वेज चेंज करते जाओगे, आप इम्प्रूव करते जाओगे. And you know, positive self-talk is the key to any successful person. If you can change the voice in your mind, you can do anything. अगर आप अपने दिमाग में जो चल रहा है उसको चेंज कर सकते हो, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते. You can change everything around you. So अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, बेहतर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने आप से जो बातें करते हो, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. प्लीज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दैट. So what makes you an influential communicator? ऐसे कौन से मंत्र है जिससे हम बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं? ये है वो मंत्र. These are the 7 virtues that will make you a great communicator. तो सबसे पहला है इसमें being a good listener. Being a good listener. Communication is not just about talking or expressing yourself. It's also about listening to what the other people are saying. You know why is listening important? मैं दलाई लामा को फॉलो करती हूँ because we share the same birthday, that is 6th of June. And Dalai Lama says that when you talk, you're only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new. तो listening जो है वो हमारे लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो हम बस वही चीजें रिपीट करते हैं जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें क्या सीखना. पर यू नेवर नो, जब हम किसी को सुनने की आदत डेवलप करेंगे, हम बहुत कुछ नया सीख पाएंगे. So develop the art of listening, which is the first step in becoming a good communicator. But there are certain obstacles in listening. हम सुनना तो चाहते हैं लोगों को, पर कुछ बाधाएं आती है इसमें. और ये बाधाएं क्या है? What are these obstacles? सबसे पहला तो physical distraction. Physical distractions, मैं आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं सुनना भी चाहती हूँ और बड़े इंटरेस्टिंग भी हो, पर मेरा फोन बज रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, मुझे कहीं जाने के लिए लेट हो रहा है. So these physical distractions, they interrupt in listening, and because of that, no matter how good the speaker is, मैं सुन नहीं पाऊंगी. Next is psychological distractions. Psychological distractions, अब मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मुझे मम्मी ने डांट दिया, मुझे टीचर ने डांट दिया, मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो गई, मेरे बच्चों से लड़ाई हो गई, तो उसके कारण नो मैटर हाउ गुड द स्पीकर इज, वो कितना अच्छा बोलना चाह रहा है, पर मेरा ध्यान तो सिर्फ अपनी समस्याओं पे ही रहेगा और मैं कुछ सुन नहीं सकूंगी.
Then comes factual distractions. Factual distractions are, आप जो बोल रहे हो वो facts के साथ मैं relate नहीं कर पा रही, तो मैं अपने आपके साथ जब आप पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, तो definitely मैं आपको सुनना भी नहीं चाहूंगी. Next comes semantic distractions. Semantic distractions are basically related to the language which is brought into usage. अब जैसे कि अगर if I am a Gujarati, I can speak Gujarati well. अगर आज का ये सेशन मैं गुजराती में लेना चालू कर दूं, मुझे तो गुजराती अच्छे से आती है, पर क्या सामने वालों को मेरी भाषा समझ में आएगी? If I start speaking only in English or only in Hindi or maybe some other language which only I know, और जो सामने वाले को नहीं आती, तो कितना भी अच्छा मैं ज्ञानी क्यों ना हूँ, कितना भी अच्छा बोल क्यों ना रही हूँ, सामने वाला मुझे समझ नहीं पाएगा और मुझे सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो भाषा उसको समझ में नहीं आती. So these are the obstacles that act as barriers in listening, और हमको इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के ही जब भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में है, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है. एंड हाउ कैन वी बिकम एन एक्टिव लिसनर? कैसे हम अच्छे लिसनर बन सकते हैं? तो एक अच्छा लिसनर बनने के लिए जब भी किसी को सुन रहे हो, उसकी आंखों में देखो, डेवलप आई कॉन्टैक्ट. जितना अच्छा आपका आई कॉन्टैक्ट होगा सामने वाले के साथ में, उतना ही आपका कान भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा और आप अच्छे से सुन सकोगे, उसकी बातों को समझ सकोगे और उसको याद रख सकोगे. नेक्स्ट इज फेस द स्पीकर. अगर आज यही सेशन मेरा फेस टू फेस कम्युनिकेशन में होता, तो शायद मैं अपने आप को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती और जस्टिफाई कर पाती इस प्रेजेंटेशन को, क्योंकि whenever we face the speaker, हमें एक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होता है, and that leads to a good impact. Then nod your head. अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हो और सामने वाला जो बोल रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा अपना सर हिला दो, बोलने वाले को लगे यार मुझे सुन रहा है, वो उसका इंटरेस्ट आएगा, वो और अच्छा फील करेगा और अच्छे से बताएगा. पर अगर आप बस ऐसी मूर्ति जैसे बैठे रहोगे, सब कुछ कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, तो यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर टू बी अ गुड लिसनर. Then always wait for the speaker to end before, like अगर मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, मेरी बात मुझे कंप्लीट करने का मौका दो. अगर आप बीच में इंटरप्ट करोगे, if you will interrupt in between even before what I have completed, then it's going to act as a barrier in the whole communication process, and it will interrupt listening, and it will also portray that आप एक अच्छे listener नहीं हो. Repeat back. जब भी कोई आपसे बात कर रहा है, कुछ बता रहा है, जरूरी नहीं उसी के सामने रिपीट करने लगो, पर आप एक बार घर जाके उसका रिकैपिचुलेशन कर लो. ट्राई टू ब्रिंग दैट इनटू योर माइंड. यू विल डेफिनेटली एंड अप अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन अ बेटर मैनर. देन आप जब भी किसी को सुन रहे हो, तो प्लीज थोड़ा अपनी बॉडी की पोजिशन फर्म रखिए. आप बहुत हाथ पैर हिलाओगे, यहाँ वहां मूवमेंट करोगे, तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे सुनने पर. देन फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड. जो भी बोला जा रहा है उसके ऊपर अपना एक फोकस डेवलप करिए. जितना आपका अटेंशन स्पैन होगा, जितना आपका ध्यान रहेगा, उतना ही आप अच्छे से सुन पाओगे. देन टेल द स्पीकर. अगर आप किसी को सुन रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो बताइए कि मुझे समझ में आ रहा है. वर्बली कम्युनिकेट करिए. इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन डेवलपिंग अ रैपो विद द स्पीकर. अगर आप नहीं बताओगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, या कुछ कंफ्यूजन तो उसको उसी पर आप क्लियर नहीं करोगे, तो आपका वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं हो पाएगा. And ask questions. अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है, let the speaker complete, ask questions. I will definitely give you a lot of time to ask questions in case if you have any after the session is over. Then ignore distractions. जो भी distractions आ रहा है, चाहे फोन बज रहा है, चाहे लेट हो रहा है, चाहे कोई बुला रहा है, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जी जान लगा दो, उसको सुन लो, क्योंकि वो सुनकर आप ही का फायदा होने वाला है. नेक्स्ट कम्स अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज. जैसे कि मैंने पहले कहा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हमारे क्या एक्सप्रेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में. और आप जितना ज्यादा बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हो लोगों की, आप उतने ही जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे. क्योंकि सिर्फ जो कह रहा है उसी के ऊपर मत ध्यान दो, वो कैसे कह रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, तभी आप एक इंटेलिजेंट पर्सन या इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर कहलाओगे. अब ये देखिए, अगर मैं इमेज, आई थिंक इमेज अच्छे से विजिबल है सबको. ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, पर इनकी जो ये बॉडी लैंग्वेज है, इससे बहुत कुछ पता चल रहा है. जैसे कि पहली वाली जो लड़की है, ऐसे खड़ी है, व्हाट डज इट शो? शी इज कंफ्यूज्ड, शी इज परप्लेक्स्ड. अभी जो दूसरा लड़का है, बड़े कैजुअल कपड़े पहना है, कैजुअल वे में खड़ा है, मतलब वो सीरियस नहीं है, वो ऐसी कुछ एक अनऑफिशियल सा ऐसी एक फ्रेंडली मीटिंग के लिए आया है. दूसरा ने कपड़े तो बड़े अच्छे पहने, बहुत अच्छे सूट पहना है, पर जो उसका खड़े होने का तरीका है, व्हाट डज इट शो? दैट दिस पर्सन कैरीज लॉट ऑफ एटीट्यूड, और ये थोड़ा सा अपना हाई पोजीशन वाला है.
ही इज ट्राइंग टू शो ऑफ हिज पोजीशन. फिर जो लड़की ऐसे खड़ी है बिल्कुल खुश, इट्स शोइंग दैट हाउ हैप्पी शी इज. द लास्ट गाय हु सिटिंग विद दिस, हु स्टैंडिंग विद दीस डेनिम्स एंड अ कैजुअल टी-शर्ट और पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा है, उसको लग रहा है कि बड़ी कैजुअल अप्रोच है उसकी. तो यहाँ पर लोग कुछ बोल नहीं रहे, पर जो उनकी जो ये कपड़े का पहनने का तरीका है, उनका जो ये एक्सप्रेशन है, उनका खड़े होने का तरीका है, वो ही अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है. तो अगर मैं ये समझ पा रही हूँ, आप भी समझ पा रहे हो, इट मीन्स वी अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज एंड वी नीड टू लर्न टू रीड एंड इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नॉट जस्ट बाय द वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग, but also by the posture or by the body language that we are expressing. So what are the elements of body language? जब हम body language की बात करते हैं, लोग किन चीजों पे ध्यान देते हैं और हमें भी किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए. जब हम किसी से मिल रहे हो तो हमें सबसे पहला जो हमारा जो इम्पैक्ट जनरेट होता है वो होता है पर्सनल अपीयरेंस से. मैं क्या बोलने वाली हूँ वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या पहन के जा रही हूँ, मेरी ज्वेलरी क्या है, मैंने बाल कैसे बना के रखे हैं, मैंने मेकअप क्या किया है, मैं हाइजीनिक हूँ कि नहीं हूँ, मैंने फुटवेयर कैसा पहना है. ये सारी चीजें जो है दे कम अंडर माय पर्सनल अपीयरेंस एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. अगर आज एक ऑनलाइन सेशन लेना है तो आई कैन अफोर्ड टू सिट इन माय कैजुअल क्लोथ्स, बट अगर आज मैं एक फॉर्मल सेटअप में जाती, मैं फिजिकली मैं कोई सेशन लेती, तो आई वुड हैव बीन वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरी लिटिल थिंग दैट आई वुड हैव worn and कैसे मैं तैयार होकर जाती, everything would have been very important. Next is facial expressions. आप जब बोल रहे हो, आपके चेहरे पे स्माइल है कि नहीं है, आपका चेहरा गुस्से वाला दिख रहा है या खुश दिख रहा है, छोटी जो आपकी आईब्रोज का जो मूवमेंट है, आपकी आंखों का जो मूवमेंट है, they all speak a lot. Then the position of your head. अगर मेरी गर्दन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखी है, means I'm a confident person, मेरी सोसाइटी में पोजीशन अच्छी है and I am a respectful person. बट अगर मैं सर गर्दन झुका के खड़ी हूँ, मतलब कि मैं सामने वाले को या तो रिस्पेक्ट देख रही हूँ या मैंने कुछ गलत काम किया है, तो भी हम गर्दन झुका के खड़े. छोटा बच्चा होता है, जब वो मिट्टी खा के आता है घर पे आ जाएगा, पता है मम्मी पापा चिल्लाएंगे मिट्टी खाई है, क्या किया तुमने ये, तो बच्चा आप देखना कभी भी आंखों में आंखें मिला के गर्दन ऊंची करके बात ही करते, ऐसे खड़ा रहेगा, बोलेगा मैंने नहीं खाई मिट्टी, पर गर्दन नीचे ही रहेगी, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है. So you know, by the position of your head only, we can come to know whether the other person is true or not. Then posture और body position. आपका जो body position है, तो please try to keep your shoulders straight, stand straight, sit straight. जितना आपका posture straight रहेगा, proper रहेगा, उतना ही it speaks volumes about your personality. Always develop eye contact while speaking. The gestures, be very particular about the gestures, movement of your hand, movement of your fingers. Then silence. Body language is not just about speaking, it's also about many a times, even if you're staying silent in a particular situation. जैसे कहीं बहुत लड़ाई चल रही है और मैं बिल्कुल चुपचाप बैठ जाऊं, इसका मतलब क्या है, मुझे नहीं लेना देना जो भी चल रहा है, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बिना बोले ही मैंने इसको बता दिया. अगर कोई मुझे डांट रहा है और मैं चुप हूँ, इसका मतलब आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, मैंने गलती करी है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ एंड आई एम क्वाइट अबाउट इट. सो मेनी अ टाइम्स साइलेंस आल्सो स्पीक्स अ लॉट अबाउट अस. अब ये कुछ इमेजेस, अगर आई डोंट नो हाउ क्लियर इट इज इन ऑन दिस प्रेजेंटेशन, इसमें इस मोड में, बट ये देखिए आप, प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज काइंड ऑफ हॉरिबल बॉडी लैंग्वेज हैबिट्स जो हमसे अनजाने में कई बार हो जाती है. जैसे फिजिटिंग, कहीं बैठे हैं और बाबर वो कुछ यू नो ये जस्ट प्लेइंग विद आवर फिंगर्स, ऐसे ऐसे कुछ कुछ कर रहे हैं, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट करता है, स्पेशली इन अ प्रोफेशनल सेटअप. फिर अगर हम बैठे बैठे ऐसे बालों से खेल रहे हैं, हम कहीं इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं या कहीं क्लास में बैठे हैं, we are just playing with our hair, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, negative body language usage. फिर adopting a very defensive pose, बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाओ, very negative. Be very particular about the pose, posture that you carry. फिर आपने देखा कुछ लोग बिल्कुल पैर घसीट घसीट के चलते हैं, बहुत ही ज्यादा खराब लगता है, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देता है आपकी पर्सनालिटी को. तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ यू आर वॉकिंग. यदि कुछ बच्चों की बचपन से पेरेंट्स को टोकना चाहिए, पैर घसीट के चल रहे हैं, तो दिस इज अ रॉन्ग हैबिट. मैं तो अपनी I mean स्टूडेंट्स को भी टोक देती हूँ and they never feel bad about it. उनको पता है मैम इज वर्किंग ओवर आवर इम्प्रूवमेंट. देन कई लोग ऐसे होते हैं उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, हंसी नहीं है. प्लीज ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज नो मैटर आप कितने महंगे कपड़े पहन लो, कितनी अच्छी ज्वेलरी पहन लो, जब तक आपके चेहरे पे एक स्माइल नहीं होगी ना, आप अच्छे नहीं दिख सकते. बिकॉज स्माइल इज द बेस्ट ऑर्नामेंट दैट एनी ऑफ अस कैन कैरी एंड बेस्ट पार्टी फ्री में मिलता है. तो एक स्माइल, प्लीज कहीं भी जाओ स्माइल जरूर कैरी करो. देन appearing distracted. कई बार क्या होता है, सामने वाला हमसे बात कर रहा है, हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे,
दैट इज एक्चुअली इंसल्टिंग, इट्स अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज यूसेज। फिर है स्लाउचिंग। कई बार क्या है, काम करते करते बिल्कुल ऐसे झुक कर काम पे ही बिल्कुल लगे रहते हैं, तो ये स्लाउचिंग पोस्चर जो है ना आपको बड़ा सुस्त थका हुआ सा उस टाइप का दिखाता है। सो प्लीज अवॉइड दिस, ऑलवेज सी दैट यू कीप योर बैक स्ट्रेट। देन कम्स कई लोग ऐसे होते हैं तो घूरते ही रहते हैं, अच्छा ऐसा हो गया, तो ऐसा आई कांटेक्ट जो बिल्कुल जाता ही नहीं, आंखें नहीं हटती। तो इस टाइप का अगर आपका कुछ, अगर आप ऐसा किसी को घूर घूर के देख रहे हो, उस टाइप का कर रहे हो, सो वेरी नेगेटिव यूसेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, प्लीज अवॉइड दैट। फिर कई बार क्या होता है, हमारे मन में कुछ और होता है, लाइक ये पिक्चर में बहुत अच्छे दिख रहा है, मन में बिल्कुल प्यार दिख रहा है और चेहरे पे हम कुछ और दिखा रहे हैं। सो अगर मन में प्यार है तो कुछ चेहरे पे भी दिखा दो, आपके मन की बातें जो है वो चेहरे के साथ कभी कभी मैच भी कर जानी चाहिए। Now, how can you improve your body language? Body language improve करने के लिए बहुत सिंपल से मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ और आप बहुत इजीली कर लोगे। जब से पहला इजी टिप है, प्लीज ऑलवेज कैरी अ स्माइल। हंसता हुआ चेहरा रखो, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है। नेक्स्ट है मेक आई कांटेक्ट। जब भी हो लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर बात करना सीखो, क्योंकि ये आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन पोर्ट्रे करते हैं। बी कंफर्टेबल इन योर स्पेस। अगर आप कहीं बैठे हो, कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो बार बार पैर हिलाना, यहाँ वहां मूव करना, यहाँ वहां देखना, ये सब मूवमेंट्स आपको अवॉइड करने। आप जहां बैठे हो ऐसे अपीयर करो कि आप बहुत ही कंफर्टेबल हो, इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती है आपके लिए। देन स्टैंड अप स्ट्रेट। जब भी खड़े हो रहे हो आप बिल्कुल अपना बैक स्ट्रेट रखिए, पैर अपने प्रॉपर शेप में प्रॉपर रखिए। ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड, यू विल अपीयर कॉन्फिडेंट। देन मिनिमाइज दैट, ऐसे कोई भी मूवमेंट जिससे आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जहां तक उनको अवॉइड करने की कोशिश करिए। स्लो डाउन योर पेस। जब भी बात करते हो ऐसा मत बात करो कि कोई ट्रेन छूटी जा रही है, थोड़ा सा स्पीड अपना बात करने का काम रखिए। वैसे ये प्रॉब्लम मुझे भी खुद में है, आई एम स्टिल वर्किंग ओवर इट। देन मेंटेन कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। अंदर भले कुछ भी हो रहा हो, जैसे कि आज जब मुझे बताया चिराग सर ने कि मैम इंटेलेक्चुअल है इस पर्टिकुलर सेशन में, और बहुत लाइक कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स भी है, सब अडल्ट है जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो मुझे भी लगा था कि वेदर आई वुड बी एबल टू जस्टिफाई माई व्यूज और नॉट। बट अंदर भले ही डर लग रहा हो आपको, आई एम श्योर मेरे चेहरे को देख के नहीं लग रहा हो कि मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है। वी शुड ऑलवेज अपीयर कॉन्फिडेंट व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग। अंदर कुछ भी चल रहा हो, यहाँ एक नहीं आना चाहिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है हिला हुआ चेहरे पे कभी नहीं आना चाहिए। Then keep your chin up. Whenever you're talking to somebody, you should see that your chin is up. Don't fidget. Don't, just move and play with things too much. And avoid putting your hands in the pocket and talking to somebody. बड़ा ही casual posture लगता है। आप जब भी किसी से बात करो, pockets में हाथ डालना avoid करो। Next comes being clear. The third tip for being an influential speaker is जो बोलो स्पष्ट बोलो, क्लियर बोलो। लिख रहे हो तो अच्छी अच्छी भाषा, अच्छी राइटिंग में लिखो। टाइप कर रहे हो तो बहुत अच्छा फॉन्ट साइज लो, अच्छे से हाईलाइट करो, कहीं बोल्ड करो, कहीं इटैलिक्स करो। जहां तक हो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी इंपार्ट करो। अगर बोल रहे हो तो आवाज आपकी क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए। आवाज ऐसी हो कि अगर 2 लोगों से बात कर रहे हो तो भी सुनाई पड़े, और अगर उस कमरे में 20 लोग बैठे हैं तो आवाज में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जो आखिरी बैठा हुआ है, पीछे भी बैठा, उसको भी आपकी आवाज सुनाई पड़े। So clarity is very important whenever we are communicating to somebody. And how to impart clarity? आप कैसे clearly communicate कर सकते हो? सबसे पहले whenever you are communicating, you should know the purpose of communication. किसी से बात करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बात कर रहे हो। ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी बोलना चालू कर दिए, ये आपको एक बहुत ही कैजुअल सा स्पीकर बनाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे पार्टिसिपेंट्स ऐसे स्पीकर बने। So you should know why you are speaking. कम्युनिकेट इमोशन। जब भी कम्युनिकेट करो तो ऐसे करो कि बात बिल्कुल दिल से निकल रही है, सामने वाला आपका फैन बन जाएगा। कम्युनिकेट फैक्ट्स। व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग, प्लीज डोंट ऑलवेज गो इन अ जनरलाइज्ड मैनर, थोड़े बहुत फैक्ट्स भी कम्युनिकेट करो। एंड कम्युनिकेट करते वक्त, मैं पहले भी बार बार बोल चुकी हूँ, सिर्फ बोलते ही मत जाओ, कभी कभी सामने वाले को थोड़ा सा सुन भी लो। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंटेंट। हो सकता है आज मैं ये प्रेजेंटेशन बहुत हाई फाई लैंग्वेज में बना लेती, ऐसे कुछ 2-4 शब्द सीख लेती जो शायद आपको नहीं पता, आपको लगता कि मैम की इंग्लिश इज टू गुड, बट वो शायद मेरे प्रेजेंटेशन की ब्यूटी को स्पॉइल कर देता। मैं यहाँ पर सीखने आई हूँ, सिखाने आई हूँ, और जो मुझे पता है वो बताने के लिए आई हूँ। तो उसके लिए जितना सिंप्लीफाइड मेरा कंटेंट होगा, जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, उतना ही मैं इसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगी। So we need to ensure that whenever we are communicating, we should try to communicate in as simple language as possible, language of the common people, because we are here to develop an understanding,
not to create an impression. Impression would be generated once we develop a good understanding. Next is being concise. Concise के लिए एक और word है brevity in communication, means जो बोलो अच्छा बोलो, कम शब्दों में बोलो, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें बताने की कोशिश करो. जैसे मैंने आपको बड़ा अच्छा एक एग्जांपल दिया था ड्रेस लेने वाला, तो अगर लंबी वाली अप्रोच लूंगी मैं उसमें तो आई वुड बी अ बैड स्पीकर. बट अगर मैं कम शब्दों में जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रही हूँ तो डेफिनेटली आई वुड बी कंसिडर्ड एन इन्फ्लुएंशियल स्पीकर. ये इमेज कितने अच्छे से बता रहा है दैट लेस इज मोर. भले यहाँ पर एक बॉल है पर ये एक जो है वो यहाँ पे पड़े हुए 6 बॉल्स के बराबर है. तो इतना सारा बोला, अननेसेसरी बोला, उसके बदले इतना सा बोला पर बहुत ही मीनिंगफुल बोला, हो गया इम्पैक्ट जनरेशन, बन गए हम इन्फ्लुएंशियल स्पीकर. सो हाउ टू कीप कम्युनिकेशन कंसाइज. आप कम्युनिकेशन को कंसाइज कैसे कर सकते हो? तो इसका सबसे पहला टिप है दैट यू नीड टू अवॉइड वर्डी एक्सप्रेशंस. मैं आपको आगे एग्जांपल देके बताऊंगी. वर्डी एक्सप्रेशंस मतलब जो भी हम बात करते हैं, बात करने के दो तरीके. एक एक बहुत लंबा सेंटेंस बोलो, एक पैराग्राफ बोल दो, या सिर्फ एक लाइन बोल दो. तो प्लीज अवॉइड पैराग्राफ्स, कंसिडर वन लाइनर्स, इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल. जितना भी अननेसेसरी मटेरियल सबको अलग करो. अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन. बार बार बातों को रिपीट मत करो. जहां जहां सॉरी आई एम जस्ट गोइंग टू द मैसेजेस. बार बार हम बातें रिपीट करते हैं ना तो सामने वाला बोर हो जाता है, फिर बीच में वो हमारे में इंटरेस्ट लूज कर जाएगा. देन ऑर्गेनाइज द मैसेज वेल. जितना आपका मैसेज वेल ऑर्गेनाइज होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेगा, उतना ही सामने वाले का आप में इंटरेस्ट बना रहेगा. जैसे कि जब हम आंसर लिखते हैं, मैं स्टूडेंट से हमेशा कहती हूँ आंसर लिखने का तरीका क्या है. इट्स ऑलवेज इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, conclusion, references. That is the way we write reports also. That is the way we write thesis also. अगर मैं पहले कंक्लूजन कर दूं, बीच में कर दूं इंट्रोडक्शन, फिर कर दूं मेन बॉडी, सामने वाले का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. सो ऑलवेज ऑर्गेनाइज द मैसेज वेल so that the reader or the listener they have interest in you. Now some wordy expressions मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे वर्डी है, अगर मैं आपको बोलूं at this point of time, हो गए कितने शब्द? 1 2 3 4 5. ये 5 शब्दों के लिए वन वर्ड क्या है? नाउ. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम की जगह बोलो नाउ. फिर बोलो ड्यू टू द फैक्ट दैट, जस्ट वन वर्ड फॉर दैट इज बिकॉज. देन इन ड्यू कोर्स, जस्ट वन वर्ड इज सून. तो आप प्लीज ऐसे देखो कैसे वर्डी एक्सप्रेशंस को आप कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हो. तो कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने यहाँ पर. यू विल गेट मेनी मोर सच एग्जांपल्स. और एक बहुत अच्छा इमेज बताता है, आप देखना जिनको भी बहुत ज्यादा पता होता है ना वो बहुत कम बोलते हैं. जो बहुत बकर 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 करते तो पीपल हु स्पीक टू मच, उनका यहाँ थोड़ा सा खाली होता है. सो द मोर यू नो द लेस यू नीड टू से, बिकॉज वॉट एवर यू से will is what will create an impact, and we are focusing on impact generation and not content generation. नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप. ये कई बार जो बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स को ये कई बार प्रॉब्लम आती है, बल्कि मैंने कई सक्सेसफुल लोगों को भी देखा है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वीक मोमेंट में एक्सप्रेस कर जाते हैं, यार आई लैक कॉन्फिडेंस. तो ठीक है, लैकिंग कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन एंड वी कैन वर्क ओवर इम्प्रूविंग आवर कॉन्फिडेंस. बीइंग कॉन्फिडेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंट अपीयर नहीं करते तो जो ये आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है यहाँ हमारे लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी. एंड वी हैव टू क्रिएट अ प्लेस फॉर आवरसेल्व्स. सो हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट. You know, becoming confident is important because it is confidence that opens doors for you in your career, in your personal life, in whatever you are doing. So confidence is the key. Now how to appear confident. आप कैसे confident बन सकते हो, ये tips आपको जरूर काम आएंगे. ये 12 में से अगर आपने 6 भी कर ली तो आप confident बन जाओगे. So how to become confident. सबसे पहला जो शायद आपको मेरी तरफ से गलत लगे पर ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी है, pretend to be confident. जैसे मैंने आपको कहा, no matter what is going within you, it should not appear on your face. It should not be visible to anybody. अंदर से भले डर के मारे मरे जा रहे हो, पर सामने ऐसे करो कि मेरे को तो कोई डर नहीं लगता. So pretend to be confident. Communicate clearly. Then use humor. जब भी आप किसी से बात करो, अब मैं चाहती तो आज का ये प्रेजेंटेशन बड़ा ही बोरिंग सा सिर्फ टेक्निकल चीजें बता के वैसे ही पढ़ के कर सकती थी. But just because I have involved a bit of humor over here, I think I have been successful in developing a connect with the audience, and that is what we need to ensure. So try to incorporate थोड़ा बहुत बीच में, सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत बीच में जब इनफॉर्मल हो जाता है तो फिलर्स का काम करते हैं.
और हमारा जो रैपो है वो बड़ा अच्छा बिल्ड हो जाता है. देन ऑलवेज प्रिपेयर. व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी, अगर आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है तो आप अगर प्रिपेयर करके जाओगे, कुछ पढ़ के जाओगे, कुछ दिमाग में आप एक रूपरेखा बना के जाओगे कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे बोलना है, तो आप कभी गलत हो ही नहीं सकते. अगर आज मैंने भी ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर नहीं किया होता, इसको 2-3 बार रिवाइज नहीं किया होता, तो शायद मैं इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती. मुझे पता है कि मुझे कब कहाँ क्या कैसे बोलना है. So just because I have worked over it, I'm appearing to be confident. Then comes think positive. Rather than हमेशा दिमाग में जो चलाते हैं ना, what may go wrong. What may go wrong की जगह ये क्यों नहीं सोचते कि क्या अच्छा हो सकता है कुछ अच्छा ही हो जाए. So always think positive. Don't focus on negative, focus on positive. Then demonstrate inquisitiveness. So whenever you're talking to people, थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट दिखाओ कि मुझे सिर्फ मेरी बातें बताने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको जानने में भी इंटरेस्ट है. द मोर इंक्विजिटिव यू अपीयर, मोर इंटरेस्टिंग यू लुक एंड मोर कॉन्फिडेंट यू अपीयर. देन प्रैक्टिस गुड पॉस्चर. अगर आपका पॉस्चर सही होगा ना, अगर मैं ऐसे झुक के बैठ के प्रेजेंटेशन दूंगी तो आई विल लूज माई कॉन्फिडेंस. इफ आई एम गोइंग टू सिट स्ट्रेट, जितना आपका बैक स्ट्रेट होगा, ये शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे, उतना ही आपका अच्छे पॉस्चर के कारण आप कॉन्फिडेंट दिखोगे भी, कॉन्फिडेंट फील भी करोगे. Then stop worrying about what people think. देखिए, जो भी ऑडियंस है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी मिक्स्ड ऑडियंस. कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको पसंद नहीं भी करेंगे. डोंट फोकस ऑन व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू. You should be very clear about your own image in your mind. Carry a very positive image and just focus on the good things. Then eliminate negative self talk. जो भी दिमाग में नेगेटिव चीजें चलती है ना, मेरे को तो बनता ही नहीं है, मैं अच्छे से बोल ही नहीं पाऊंगी, मैं तो कुछ भी अच्छा कर ही नहीं सकती, ये सारी चीजें हमेशा के लिए जिंदगी से कट ऑफ कर दीजिए. देन ऑलवेज स्माइल. हंसता हुआ चेहरा रहेगा तो थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा ना, लोग उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे. पर गंदा अकड़ा हुआ सा रूखा सा चेहरा रहेगा तो जरा सी भी गलती को लोग पहाड़ जैसा बना देंगे. देन गेट फिजिकली स्ट्रॉन्गर. अच्छे से खाओ, एक्सरसाइज करो, स्ट्रॉन्ग रहो. जितने स्ट्रॉन्ग आप रहोगे उतने ही आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे. एंड इन्वेस्ट इन योर अपीयरेंस. कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं हम कैसे दिखते हैं वो थोड़ा बहुत मैटर करता है. तो कैसे दिखने के लिए थोड़ा बहुत हमें अपीयरेंस पे इन्वेस्ट करना चाहिए. वेयर गुड क्लोथ्स, क्लोथ्स दैट सूट यू. वेयर गुड फुटवेयर. अप्लाई बिट ऑफ मेकअप दैट सूट्स यू. गेट अ गुड हेयर कट. ये सारी चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका अपीयरेंस अच्छा रहेगा एंड यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ. थोड़ी फिट रहोगे तो भी आप अच्छे दिखोगे. तो हैविंग टैलेंट इज फैंटास्टिक. टैलेंट तो भगवान ने सबको दिया है, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि क्या टैलेंट है हमारे पास और क्या नहीं है. बट हैविंग कॉन्फिडेंस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट. I may not be very talented, but if I'm confident, I have everything that a person can think of. So please work over building up your confidence. You know why? Because confidence is contagious. You should catch it, because when you catch it, you get it, you spread it. अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट बना दूंगी, भले ही उनके अंदर कुछ भी चल रहा हो. और अगर मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो मैं सबको अपने जैसा डरपोक बना दूंगी. सो किसी को नेगेटिव बनाने से अच्छा है कि खुद कॉन्फिडेंट बन के ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंट बनाओ. कोरोना इज ऑल्सो कंटेजियस. वो सबको, एक को होएगा सबको हो जाएगा. तो वैसे ही कॉन्फिडेंस भी कंटेजियस है. एक कॉन्फिडेंट होगा सबको कॉन्फिडेंट कर देगा. सो लेट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस इन ईच अदर. Next is being personable. Now, what is the meaning of being personable? Personable people are those who, एक बड़ी charismatic personality होती है, who are liked by people. They carry very good manners and they are pleasing people. होते हैं ना कुछ लोग बड़े ही अच्छे से होते हैं, well behaved, well mannered, पसंद आ जाते हैं. तो हमें वैसा बनना है. Always be very particular about the manners that you carry. So personable people, they are great orators. बहुत अच्छे से बात करना भी जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको पता है कि कैसे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचे और कैसे उनको अपना बना ले. कई बार होते हैं ना, किसी से पहली बार मिलते हो लगता है कि यार इससे कनेक्ट है, इसने हमको अपना बना लिया. तो वो होते हैं पर्सोनेबल पीपल. तो यू नीड टू डेवलप दैट आर्ट. और इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे किसी को अपना बनाना है आपको, उसके लिए सबसे आसान है, लोगों को सुनना चालू करो, अच्छा बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करो, वर्बली कम्युनिकेट, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, शो एम्पैथी, सामने वाले को समझने की कोशिश करो. जहां तक हो लोगों को उनके नाम से बुलाओ. अगर आप किसी को बस नाम से बुला दोगे तो सामने वाला इतना कनेक्टेड फील करेगा, अरे वाओ उसको मेरा नाम पता है, मुझे पहचानता है. यूज टच एट टाइम्स व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड एंड हेल्प अदर्स एंड आस्क फॉर हेल्प. अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो हेल्प करिए. और किसी को अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो किसी से प्लीज आप हेल्प मांगने से भी मत शर्माइए.
अब बेटर वर्ड्स टू कंसिडर. अब आज के जमाने में जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट यूजिंग बेटर वर्ड्स. तो कॉमन वर्ड्स है वो ही यूज किए तो क्या यूज किए, तो क्यों ना थोड़े बेटर वर्ड्स हम इंग्लिश में से ले ले और एक अच्छी इंप्रेशन क्रिएट करें अपनी. तो यही हमें हेल्प करता है बीइंग पर्सोनेबल बनने में. So we need to have a good choice of words when we believe in connecting with people and creating an impression. So I'll give you some examples. जैसे कि है एक वर्ड हम यूज करते हैं बड़ा कॉमनली, मैड. मैड बड़ा कॉमन वर्ड है, हर किसी को आता है. बेटर इंग्लिश का वर्ड हो जाएगा इनसेन. किसी को अगर हमने लाइक इनसेन अगर वर्ड यूज किया दैट विल अपीयर दैट मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है. देन एक्सप्लेन की जगह वर्ड यूज करते हैं एडवांस इंग्लिश का एलैबोरेट. बाय की जगह परचेज. empty की जगह vacant. We just need to replace better words. Give up की जगह word use कर दो quit. Ring up की जगह word use करो call. Attractive की जगह बोलो she's so appealing, she has an appealing personality. Smart की जगह बोलो brainy. Quick की जगह बोलो swift. Live की जगह बोलो I reside here. You know, dear participants, a good relationship, it starts with communication. And we need to work over building relationships. And for that, we need to develop excellent communication skills. Next comes being patient, धैर्य, शांति. एंड इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी बोलने के लिए मन में बहुत कुछ आ रहा होगा, बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा होगा, बट बोलने के पहले यूज दिस THINK. क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सच है? क्या वो किसी के काम आ सकता है? क्या वो इंस्पायरिंग है? इज इट नेसेसरी? क्या इससे कोई हर्ट तो नहीं होगा? इज इट काइंड इनफ? आपको जब तक इन सबके पांचों के आंसर यस में ना आए, आप बोलने मत चाहिए, चुप रहिए. बोलना है जब तक इनके आंसर यस ना हो तब तक मत बोलिए. एंड पेशेंस एंड कम्युनिकेशन, यू नो, उसका क्या रिलेशन है? यू शुड ऑलवेज सी थ्रू द लेंस ऑफ अदर. जब भी आप बात कर रहे हो आपको बहुत मन में सोच लेना है कि मेरी ये बात का सामने वाले पर क्या असर होगा. देन लिसन एंड आस्क क्वेश्चंस विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. देन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. कब क्या कैसे बोलना है, किससे बोलना है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. एंड पॉज एंड थिंक. डोंट रश विद द कम्युनिकेशन. कभी लग रहा है कि कुछ बात अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस लीजिए, रुक जाइए, फिर आप आगे कम्युनिकेट करिए. तो हो सकता है इससे आपके थॉट्स कुछ और इम्प्रूव हो जाए, कुछ बदल जाए, आपको लगे अब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है. तो ऑलवेज प्रैक्टिस पॉज एंड ब्रीथ. नाउ अच्छा कम्युनिकेटर बनना तो बहुत जरूरी है, बट शायद हम ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बैड स्पीकर्स की कैटेगरी में आते हैं. सो व्हाट इज इट दैट मेक्स अ पर्सन अ बैड स्पीकर? सबसे पहला जो है वो है, पहला है व्हाट मेक्स अ पर्सन अ बैड स्पीकर इज द हैबिट ऑफ गॉसिपिंग. कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत यहाँ की बात वहां करना, लोगों की बुराइयां करना, ये करने में उनको एक अलग ही मजा आता है. तो इस टाइप के जो लोग होते हैं इनको कुछ समय के लिए तो अटेंशन मिल जाता है, कुछ समय में लोग उनको सुन लेते हैं, बट लॉन्ग रन में these kind of people they come under the category of bad speakers and they are disliked by people. बल्कि लोग उनको कहते हैं अरे वो तो बहुत गॉसिप करते हैं, उनसे दूर ही रहो. नेक्स्ट है जजिंग. ऐसे लोग जो हमेशा हमें जज करते रहते हैं, ये ऐसा, ये वैसा, इसने ये पहना, इसने वो पहना, इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला. These kind of people are not liked by people. So stop judging people. Learn to accept people the way they are. Then comes the complaining attitude जो होता है लोगों का. There are so many people जो हमेशा complain करते हैं, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, ऐसा ही होता है. हमेशा आप complaining mode में रहोगे तो आप कभी भी किसी से पसंद नहीं किए जाओगे. And there are many people who are always negative, जो हमेशा हर चीज में नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, ये तो हो ही नहीं पाएगा, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुमसे तो होगा ही नहीं. Even they are disliked by people. Then comes people who are dogmatic. Dogmatic people are those जो you know उनका एक बड़ा ही अच्छा अप्रोच है, my way or no way. उनको बस अपनी ही बात सही लगती है, वो अपनी ही बात लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं. तो जब भी इस टाइप के लोग हमारे आजू बाजू होते हैं, we do not like such people, और हम उनके साथ उनको बहुत लंबे समय तक झेल नहीं पाते. So they come under the category of bad speakers. देन होता है ऐसे लोग जो बहुत ही एग्जैजरेट करते हैं, जो बहुत लंबी लंबी हाँकते हैं, डींगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तो ये कर सकता हूँ, मेरी इससे पहचान है, ये है वो है. तो these kind of people are also not liked by people around. And then comes people who are making excuses, जो हमेशा काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं. Even they are not liked by people. So if you have any of these 7 habits, that is gossiping, judging, then being negative, complaining, then making excuses, then exaggerating or being dogmatic,
तो प्लीज ये सब आपको बैड स्पीकर की कैटेगरी में डालेगा, इनसे आज ही छुटकारा पाना है आपको. Now we come on, I would suggest the audience to take a snapshot of the next slide that I would be showing. These are the qualities of people with amazing communication skills. मैं ये नहीं कहती कि आप में ये सारी qualities नहीं है, आप में ये qualities कुछ होगी, कुछ नहीं होगी. तो जो है उनके लिए congratulations, और जो नहीं है please, I'm sure आप उसको improve कर सकते हो. तो qualities है, जो लोग के बहुत अच्छे communication skills होते हैं, they are people who are approachable, they are great listeners, they speak very well, they are open minded, they are authentic and honest people, they know how to make the right display of body language, they are very conscious about it, they carry a positive attitude, they inspire others. वो खुद तो inspire होते ही है, पर अपने जो आजू बाजू लोग हैं उनको भी inspire करते हैं और उनको motivate करते हैं कि they should do better in their life. They are people जिनके प्रति लोग gravitate करते हैं. People get attracted to great communicators. Then they are patient and they can debate on anything. वो किसी भी बात पे बहस कर लेंगे, पर आपको कभी लगेगा नहीं कि वो बहस कर रहे हैं, because they will never get to it. They will go in for a very healthy debate, and they can connect with anybody, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा आदमी हो, चाहे बड़ा ऑफिसर हो, चाहे एक रोड साइड शॉपकीपर हो, वो सबसे कनेक्ट कर लेते हैं. And they are reliable. जो great communicators होते हैं, we develop a kind of trust and faith in them, and we can be ourselves with them. So I would request you all to develop these qualities in yourself and become great communicators. Half of your beauty, we may or may not be beautiful, पर हम जिस तरीके से बात कर सकते हैं उससे हम खूबसूरत दिख सकते हैं, because half of your beauty comes from the way you speak. And a poor communication can ruin an amazing connection. मेरा बहुत अच्छा connection हो सकता है, पर जरा सी बात करने के तरीका अगर मेरा गलत हो जाएगा, I will lose that connection forever. So I don't want you all to lose any such connection in future, and I want you all to imagine with your mind, believe with your heart, and I'm sure you will be able to achieve with all your might. अगर आपने imagine कर लिया कि I'm going to become a great communicator, you start believing कि मैं अच्छा communicator बनूंगा, सारी habits develop करूंगा, and definitely you will achieve and become a great communicator and make me feel proud of you all. So how do you feel after this presentation today? I would request you all to please send me the comments in the chat box, and you can connect with me. This is my connect. In piece of knowledge. Thank you, ma'am, for your valuable time and sharing your same piece of knowledge. I also extend a hearty thanks to all our participants for your cooperation. The Zoom meeting ID for the rest of the days would be the same. I hope to see you guys tomorrow. Thank you.